बोर्ड कंप्लीटली विजिबल है या नहीं है? So now today we'll discuss आज हम लोग फिजिक्स डिस्कस करेंगे, वही मोशन इन 1D and today we'll discuss equations of uniform accelerated motions. Equations of uniform accelerated motion. These equations you already learned in the 9th standard. ऑलरेडी आप 9th स्टैंडर्ड के अंदर ये इक्वेशंस आप डिस्कस कर चुके हैं. यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन यानी एक्सेलरेशन क्या है? ऑब्जेक्ट इज ट्रैवल विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. किस एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यानी एक्सेलरेशन आपका क्या है? ए जो है वो क्या है? कांस्टेंट है. क्या है? कांस्टेंट. नाउ व्हाट इज द सिचुएशन इन दिस derivation of equation of uniform accelerated motion? Suppose the object of mass m whose initial velocity is u meter per second at t is equals to 0 second. After the time t, it increases its velocity, and after time t, the final velocity becomes v meter per second. Final velocity is v meter per second. Initial velocity क्या है? u meter per second and final velocity is v meter per second. So acceleration of an object is change in velocity, ratio of change in velocity upon time taken. That ratio is called acceleration. Acceleration of an object is change in velocity of an object upon time taken. That ratio is called acceleration. So acceleration क्या हो जाएगा? A is equals to change in velocity. Initial velocity u है, final velocity v. The acceleration is v minus u upon time taken, t minus 0. So A is equals to v minus u upon t. So v minus u is equals to at. So v is equals to u plus a. So that is the first equation of uniform accelerated motion, and that equation is velocity time equation. इस equation को हम क्या बोलेंगे? Velocity time acceleration. Where v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, t is time. Is it clear? अंश, मैत्री, समझ में आया बेटा? तो ये आपका वेलोसिटी टाइम इक्वेशन डिराइव हुआ. नाउ विल डिराइव सेकेंड इक्वेशन. Now second equation is this is distance time equation. What? Distance time equation. और
It is also known as displacement time equation, distance time equation or displacement time equation. ठीक है, so देखिए, as we discuss, average velocity is what? Total displacement upon total time. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. सो देखिए, वी एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं एस, टोटल टाइम लेट्स सपोज टी. टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने लिया एस एंड टोटल टाइम वी आर टेकन टी. नाउ एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने क्या बोला कि t is equals to 0, velocity is u meter per second, after time t its velocity is v meter per second. तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? u plus v by 2. दिस इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ द जर्नी. इनिशियल आपका u मीटर पर सेकेंड है और फाइनल v मीटर पर सेकेंड है, तो एवरेज हो जाएगा u plus v by 2 and that is equals to s by t. अब हमें एक्चुअली क्या कैलकुलेट करना है? डिस्प्लेसमेंट. तो s इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2t. u प्लस v बाय 2 इंटू टी, सॉरी डिवाइड बाय टी नहीं, इंटू टी. ये t क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा. t क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा. ना अब हमने फर्स्ट इक्वेशन जो डराइव किया है v इज इक्वल्स टू u प्लस at, वो वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे v की जगह. v की जगह हम क्या प्लेस करेंगे? u प्लस at. तो s इज इक्वल्स टू u प्लस at बाय 2 इंटू t. सो s इज इक्वल्स टू 2u प्लस at इंटू t बाय 2. तो s इज इक्वल्स टू 2ut प्लस at स्क्वायर बाय 2. सो 2 से 2 कैंसिल. देखिए s इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 2ut बाय 2 प्लस at स्क्वायर बाय 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. So that is a second equation of uniform accelerated motion, which is known as displacement time equation. देखिए, ये जब 2ut था, 2ut को 2 से डिवाइड किया और at स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया, तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, क्योंकि देखिए ये दोनों टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है ना, तो इंडिविजुअली डिवाइड होगी. 2ut डिवाइड बाय 2 एंड at स्क्वायर इज डिवाइड बाय 2. तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया ut और यहाँ 1/2 आपका क्या होगा? रहेगा. 2 डिनोमिनेटर में रहेगा ना, तो उसको हमने क्या लिख दिया? 1/2 at स्क्वायर. Is it clear? Now next, third equation. That is velocity displacement equation. थर्ड इक्वेशन हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन. तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिलेट कर रहे हैं? वही एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. s इज इक्वल्स टू u प्लस v बाय 2 इंटू टी. ये अभी हमने जो लास्ट वाला पार्ट जो डिराइव किया उसी को लिख रहा हूं. अब ये जो t की वैल्यू है, वो t की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन से डिराइव कर रहा हूं. फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन
a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमने क्या डिराइव किया था, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो इसे क्या डिराइव हुआ, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। t की जगह हमने क्या रख दिया, v माइनस यू अपॉन a। अब इस t की जगह ये t की जो वैल्यू है वो ये प्लेस कर दो। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया, v प्लस यू बाय 2 इंटू v माइनस यू बाय a। हमने जो t है टाइम की जगह हमने क्या रख दिया, v माइनस यू अपॉन a, क्योंकि हमारा जो रिलेशन हमें डिराइव करना है उस रिलेशन में टाइम नहीं है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। तो देखिए अब ये हो गया 2 इंटू ए वी प्लस यू वी माइनस यू। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज माय वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। और ये जो मेथड हमने यूज किया टू डिराइव द इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, दैट मेथड इज एनालिटिकल मेथड। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल मेथड। एनी डाउट? अब इसमें इक्वेशंस जो तीनों डेराइव हुई उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यानी आपका एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है। क्या है, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या हो गई, v इक्वल्स टू u प्लस at। ये इक्वेशन 1, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अब इसके अंदर आपका जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन क्या है, ड्यूरिंग अ जर्नी ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड मोशन। डी एक्सेलरेटेड मोशन मतलब टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। तो इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड मोशन, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो तीन इक्वेशन जो चेंज आएगा, v इक्वल टू यू माइनस एटी, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ये तीन इक्वेशंस में एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन था यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इज इट, क्या कह रहे हैं बेटा? हाँ, ये जो एनालिटिकल मेथड है ये नहीं आता जनरली। जो मेथड अब आएगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे, कैलकुलस मेथड। अभी जो सेकंड, देखिए तीन मेथड से ये इक्वेशंस डिराइव होती है, एनालिटिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड कैलकुलस मेथड। देखिए एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड आप पहले भी 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं, ये मैं वापस रिवाइज ही करवा रहा हूँ। इस साल आपको कैलकुलस मेथड पढ़ना है, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन वाला। तो वो कैलकुलस मेथड से इक्वेशंस डिराइव करना पूछी जाती है। आपको क्वेश्चन आएगा, डिराइव द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो अभी इसके बाद मैं वही टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, डिराइव द इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया आपको? इक्वेशन समझ में आई एक्सेलरेटेड मोशन की और डी एक्सेलरेटेड मोशन की? एनी डाउट इन दिस पार्ट?
एनीवन? किसी को कोई डाउट बेटा? गर्ल्स, एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट मेथड इज कैलकुलस मेथड. कैलकुलस मेथड के अंदर हम इंटीग्रेशन का लॉजिक यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है. एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है. तो एक्सेलरेशन से हमें वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इंटीग्रेशन करने पर आएगी, वेलोसिटी को वापस इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. तो यहाँ इंटीग्रेशन का लॉजिक या एप्लीकेशन यूज होगा. तो कैलकुलस मेथड. अब सिचुएशन वही है, दैट ऑब्जेक्ट इज ट्रेवल विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. इनिशियल वेलोसिटी जो है u मीटर पर सेकेंड है एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे, और फाइनल वेलोसिटी है v मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल्स टू t सेकेंड पे. इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दे रखा है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म दिया हुआ है. तो देखिए, now as we know that acceleration is dv by dt. मैं फर्स्ट इक्वेशन डराइव कर रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन. क्या डराइव कर रहा हूँ? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन. तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन a is equals to dv by dt. a is equals to dv by dt. So dv is equals to a dt. dv is equals to what? a dt. क्रॉस मल्टीप्लाई किया. ठीक है. अब ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, देखिए इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर a आपका जो है वो कांस्टेंट है. ये जो है वो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt. इंटीग्रेशन ऑफ dv, a बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dv. अब देखिए, मेरी इनिशियल टाइम क्या है? 0. तो 0 पर मेरा इनिशियल वेलोसिटी है u, और जब मेरा टाइम t हो गया है तो फाइनल वेलोसिटी हो गई है v. अब ये जो मैंने इस इंटीग्रेशन सिंबल के ऊपर और नीचे ये दो वैल्यूज प्लेस करी है, ये मुझे डेफिनेट इंटीग्रेशन देगा. क्या देगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन. अब तक जो हम किए हैं वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था, उसमें हमने लिमिट्स नहीं रखी थी. ये देखिए, ये लोअर लिमिट है, इसको अपर लिमिट बोलते हैं. ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, यानी ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू. तो इस इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन. क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन. तो इसको कैसे करते हैं अभी मैं डिस्कस करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा. dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v, और इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट प्लेस कर दी. देन a dt का इंटीग्रेशन t, लोअर लिमिट अपर लिमिट. अब ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे यूज करनी है? लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो ये अपर लिमिट आ जाएगी v, लोअर लिमिट आ जाएगी u. v माइनस u इज इक्वल्स टू a t माइनस 0. इसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन. देखिए, इससे पहले जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते थे तो हम प्लस c लगाते थे. अब इसके अंदर c लगाने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि कांस्टेंट नहीं आएगा, इसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा. डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन करने पर आपको एक डेफिनेट न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी. तो ये क्या आया? देखिए, v माइनस यू इज इक्वल्स टू a t. v माइनस यू इज इक्वल्स टू a t. तो v इज इक्वल्स टू u प्लस a t. तो दिस इज आवर वेलोसिटी टाइम इक्वेशन. इज इट क्लियर? क्या कह रहे हैं बेटा? देखिए, हाँ, अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे लगाई? हमने क्या बोला कि t इज इक्वल्स टू 0 पर मेरा इनिशियल वेलोसिटी है u मीटर पर सेकेंड, और t इज इक्वल्स टू t सेकेंड पर मेरा फाइनल वेलोसिटी है v मीटर पर सेकेंड. तो मैंने लोअर लिमिट लगाया इनिशियल वेलोसिटी, अपर लिमिट लगाया फाइनल वेलोसिटी. लोअर टाइम लगाया 0 सेकेंड, अपर टाइम लगाया t सेकेंड. अब
dv का इंटीग्रेशन v हुआ, dt का इंटीग्रेशन t हुआ। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब इस v की वैल्यू प्लेस करूंगा, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को यहाँ प्लेस करूंगा तो आ जाएगा v माइनस यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे यहाँ x होता और x की अपर लिमिट होती 2 और लोअर लिमिट होती 3, तो इसमें क्या से x वैल्यू क्या से प्लेस करता 3 माइनस 2, अपर माइनस लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और यहाँ पर भी अपर लिमिट है t, लोअर लिमिट है 0, तो t माइनस 0। इज इट क्लियर? एनीवन एल्स? किसी और को कोई डाउट? कंफर्म? ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम। इक्वेशन कैसे आएगा देखिए, v इज इक्वल टू ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को मैं s ले रहा हूं, तो v इज इक्वल टू ds बाई dt, तो ds इज इक्वल टू v dt। अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन जो डराइव करी, v इज इक्वल टू u प्लस at, v की जगह हमने ये वैल्यू प्लेस कर दी, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो ds इज इक्वल टू u प्लस at dt, तो ds हो गया u dt प्लस at dt। v की जगह u प्लस at रख दिया और dt को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम करेंगे ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो देखिए ds इंटीग्रेशन u dt प्लस a t dt। अब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट इनिशियली ओरिजिन पे था, और फाइनल उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया s, तो लोअर लिमिट लगा दी हमने 0 और अपर लिमिट लगा दी s। और इसी तरीके से लोअर टाइम है 0, टाइम अपर टाइम है t, 0 और t, ये हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब ds का इंटीग्रेशन हो गया s, 0 टू s, dt का इंटीग्रेशन t, u लिमिट 0 टू t प्लस a बाहर, t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए t टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, और लिमिट लगा दी 0 टू t, क्या लगा दी 0 टू t। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाएंगे, s माइनस 0 इज इक्वल टू u t माइनस 0 प्लस a बाई 2 बाहर, क्योंकि देखिए ये 2 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू वो बाहर आ गई, a बाई 2, और लिमिट लगाई t स्क्वायर माइनस 0, एक बार t की जगह t स्क्वायर रखा और एक बार t की जगह 0 रखा, तो हो गया t स्क्वायर माइनस 0, तो s इज इक्वल टू ut प्लस 1 बाय 2 at स्क्वायर। ये आपका सेकेंड इक्वेशन डेराइव हो गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ मैं बता देता हूं, देखिए ये इंटीग्रेशन समझ में आ गया आपको, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाद हम क्या कर रहे हैं, ये जो वेरिएबल है इसमें ये और ये वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, तो s माइनस 0, t माइनस 0 एंड t स्क्वायर माइनस 0। देखिए इस t की जगह ये वाला t रख रहे हैं, अब एक्चुअली क्या एक जैसा वेरिएबल है ना, तो शायद कंफ्यूजन हो रहा है,
तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे इस वेरिएबल की जगह, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे इस वेरिएबल में, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, फिर एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। तो s माइनस 0 इज इक्वल टू u t माइनस 0 प्लस a बाय 2 t स्क्वायर माइनस 0। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत बार एग्जाम में ये वाली इक्वेशन बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक यूज हो रहा है, a इज इक्वल टू dv बाय dt एंड v इज इक्वल टू ds बाय dt। ठीक है, सो अब इस इक्वेशन में क्या हुआ, dv इज इक्वल टू a dt, dv इज इक्वल टू a dt, और dt की जगह हम क्या रख रहे हैं इस इक्वेशन, देखिए ये इक्वेशन 1 हो गई, और इस इक्वेशन सेकंड की हेल्प से dt की जगह हमने क्या रख दिया, ds बाय v, क्या रख दिया, ds बाय v। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ dt हियर, तो क्या हो गया, dv इज इक्वल टू a dt की जगह रख दिया ds बाय v, ये हो गया v dv इज इक्वल टू a ds। आया समझ में? या फिर इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी मैं समझाता हूं, थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो इस तरीके से देखो कैसे कर रहा हूं। a इज इक्वल टू dv बाय dt, अब क्या किया, दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैंने क्या किया, ds बाय ds से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, ds बाय ds से मल्टीप्लाई कर दिया। अब a dv बाय ds इंटू ds बाय dt, ये जो ds था वो यहां ले आया और ये dt यहां ले गया, तो अब ये ds बाय dt क्या होता है, v, तो a इज इक्वल टू dv बाय ds इंटू v। अब ds को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a ds इज इक्वल टू v dv। आया समझ में अब आपको? अब हम करेंगे ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया, a बाहर ds इक्वल्स टू v dv इंटीग्रेशन, लिमिट 0 टू s और लिमिट u टू v। देखिए डिस्प्लेसमेंट का लोअर डिस्प्लेसमेंट है 0, फाइनल डिस्प्लेसमेंट है s, लोअर वेलोसिटी है u और अपर वेलोसिटी है v। तो a बाहर, ds का इंटीग्रेशन s लिमिट 0 टू s इज इक्वल्स टू v dv, v का इंटीग्रेशन होता है v टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया v स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगाई u टू v, तो ये होगा a s माइनस 0, अपर लिमिट है s, लोअर लिमिट है 0, ये 1/2 बाहर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, एक बार v की जगह v रखा और एक बार v की जगह u रखा, तो ये होगा as इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गया कैलकुलस मेथड के। तो ये जो तीनों मेथड मैंने कैलकुलस मेथड के डिस्कस किए, ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीनों में से कोई एक मेथड आपको पूछा जाएगा, कैलकुलस मेथड। और ठीक है, क्या कह रहे बेटा?
कितने चैप्टर्स हो चुके हैं? ये 3rd चैप्टर चल रहा है ना बेटा? ये 3rd चैप्टर। ना 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 ना, बीच में से कोई टॉपिक नहीं, ये एक ही चैप्टर्स के सारे टॉपिक चला रहा हूं मैं। आपने 3rd चैप्टर तो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग से ही पढ़ा है ना? 3rd चैप्टर। तो आपका मेनली 1st चैप्टर में इतना ज्यादा है नहीं। मैं ना आज आपको 1st चैप्टर्स के वीडियोस के लिंक शेयर करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल के, वो आप एक बार आज देखिएगा यूट्यूब चैनल पे। 1st चैप्टर तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, थ्योरेटिकल है। फिर भी मैं एक बार दोनों चैप्टर्स के आपके एक्स्ट्रा लेक्चर्स जो है वो अभी अरेंज करूंगा इस मंथ के अंदर, नेक्स्ट इसी वीक के अंदर मैं अरेंज करता हूँ, ठीक है ना? मेनली 2nd चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है, 1st चैप्टर तो थ्योरेटिकल है। तो क्या है, एक बार वीडियोस देखोगे और उसके बाद ज्यादा क्वेरी नहीं रहेगी। फिर भी एक बार अपने 1-2 लेक्चर्स उसके लिए भी अरेंज करेंगे, है ना? हो जाएगा जल्दी, कोई इशू नहीं है। एनी डाउट? एनीवन? इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो अब एक जो 3rd मेथड है ग्राफिकल मेथड, वो हम थोड़े टाइम बाद करेंगे। जब हम स्टडी ऑफ मोशन बाय ग्राफ डिस्कस करेंगे तब वो मेथड भी मैं डिस्कस कर लूंगा। स्टडी ऑफ मोशन बाय ग्राफ हम एक टॉपिक